हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज आवर लेक्चर 11th आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। आफ्टर दैट, बिफोर डिस्कसिंग द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस nomenclature of cyanides and isocianides. Dear students, इससे पहले जो लेक्चर्स हमारे थे, these were about the IUPAC nomenclature of derivatives of carboxylic acids. Carboxylic acids भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, उसके derivatives एक तो था एसिड हैलाइड्स, आफ्टर दैट एसिड एमाइड्स, एस्टर्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, और फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड कंपाउंड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स यहाँ पे हमने वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उनके डिस्कस किए हैं. नाउ अनदर डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दीज आर एसिड एनहाइड्राइड्स. एसिड एनहाइड्राइड्स, acid anhydrides are also the derivatives of carboxylic acids. जो लेक्चर्स मैंने यहाँ पे रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहाँ पे डिस्कस किए, मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे आप लोगों को बताया कि हाउ वी आर इन ए पोजीशन to derive these very derivatives from carboxylic acids. This is another derivative of carboxylic acids. For example, how we are in a position to derive this very acid anhydride from carboxylic acids. The general formula for carboxylic acids is RCOOH. When one carboxylic acid, मतलब one unit of carboxylic acid is treated with another unit of carboxylic acid. For example, ये भी एक carboxylic acid है और ये भी एक carboxylic acid है. There is the loss of water. यहाँ से loss of water हो जाता है. That means minus H2O will be there, and there is the formation of R C double bond O, O C double bond O R. आर और ये आर डैश भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, जिस तरह से मैंने एस्टर्स में कहा है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स. दिस आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, आर और आर डैश ये हो सकता है. दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर एसिड एनहाइड्राइड्स. C double bond O, O C double bond O is their functional group. This is the functional group for acid anhydrides. This is the functional group for acid anhydrides. प्यारे बच्चों, इसका जो secondary suffix in case of acid anhydrides, the secondary suffix is, my dear students, it is oic anhydride. The secondary suffix of acid anhydrides is oic, OIC anhydride, oic anhydride. प्यारे बच्चों, if we have to name an acid anhydride, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि these are the derivatives of carboxylic acids. When two units of carboxylic acids are treated with one another, there is the loss of water and there is the formation of acid anhydride. For example, R के बदले में यहाँ पे CH3 लूंगा, कोई अल्काइल ग्रुप, R denotes an alkyl group, C double bond O, O, C double bond O, CH3. That means CH3 C double bond O, O C double bond O, CH3. It is the derivative of, ये कहां से derive हो गया होगा? For example, CH3 C double bond O, OH plus 2 units of ethanoic acid. This is known as ethanoic acid. Carboxylic acids का nomenclature हम लोग ने यहाँ पे discuss किया. यहाँ से loss of water हो गया होगा, and there will be the formation of CH3 C double bond O, O C double bond O, CH3. जो यहां पे मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, ये कहां से हमें डिराइव हो गई
होगी कि when two units of ethanoic acid are treated with one another there is the formation of this very compound, this very anhydride. अब इसका हमें IUPAC nomenclature देना है. याद रख लीजिए my dear students, I will repeat it once again कि acid anhydrides are the derivatives of carboxylic acids. When two units of carboxylic acids are treated with one another there is the formation of acid anhydride. एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड होता है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इसका जनरल नेम जो एसिड एनहाइड्राइड्स का होता है इट इज एल्केनोइक एनहाइड्राइड. एल्केनोइक याद रख लीजिए. दिस इज देयर जनरल नेम, दिस इज देयर. यहां पे ही हम लोगों को जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी एनहाइड्राइड का दे देंगे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि दैट इज जनरल नेमिंग इज एल्केनोइक एनहाइड्राइड. दो एल्केनोइक, ये भी एल्केनोइक. दैट मीन्स हमें एक एनहाइड्राइड का नाम उस तरह से देना है किस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये डिराइव हो गया होगा. दैट मीन्स देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, सिंपल टिप. जो ये ऑक्सीजन है दाईं तरफ देख लीजिए कितने कार्बन एटम्स है, बाईं तरफ देख लीजिए कितने कार्बन एटम्स है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, 2, 1 and 2. यहाँ पे कितने हैं, 1 and 2. दैट मीन्स ये इथेनोइक होगा, ये भी इथेनोइक होगा. दैट मीन्स as per it is general nomenclature alkanoic anhydride. लेकिन my dear students जब ऑक्सीजन के दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे my dear students, हम यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं. मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा कि जो एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं these are the derivatives of carboxylic acids. जनरल नोमेनक्लेचर इनका होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड. लेकिन एक चीज आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन के दाईं तरफ और ऑक्सीजन के बाईं तरफ. दाईं तरफ भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा, बाईं तरफ भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा. उस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई अल्काइल ग्रुप होगा. हमें दाईं तरफ भी काउंट करने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बाईं तरफ भी करने हैं. अगर सेम होंगे, दाईं तरफ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होंगे, बाईं तरफ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होंगे, तो हमें सिर्फ एक ही एल्केनोइक लिखना होगा, दोनों नहीं लिखने होंगे. ये तब लिखना होगा जब दाईं तरफ अलग कार्बन चेन होगी और बाईं तरफ अलग होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 and 2. दैट मीन्स इथेनोइक और ये एनहाइड्राइड. इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड. या इस तरह से हो सकता है HCOO COOCH या H. यहां पे H देख लिए माय डियर स्टूडेंट्स. अगर इसका हमें नोमेनक्लेचर IUPAC यहाँ पे तो एनहाइड्राइड है, अच्छी तरह से पहचान लीजिए. C+O बीच में और फिर से C+O. दैट मींस 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स. ऑक्सीजन के दाईं तरफ यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, 1. यहाँ पे कितने हैं, 1. हाउ मेनी, दैट मींस नाउ मिथ 1 कार्बन एटम मिथेनोइक ओ मीथेन ई नहीं, क्योंकि ई और ओ साथ साथ है, ई कट जाएगा. मिथेनोइक एनहाइड्राइड. याद रख लीजिए बेटा, मैंने अभी कहा कि एल्केनोइक एनहाइड्राइड ये तब लिखना है जब दाईं और बाईं तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. जब सेम होंगे तो एक ही का नाम लिखना है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एनहाइड्राइड. याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दैट इज ये कहां से हमें डिराइव हो गया होगा, HCOOH प्लस C+OH. यहां से वाटर लॉस, यहां से -H2O. दैट मीन्स HC+OOCOOH. ये भी मिथेनोइक, ये भी मिथेनोइक. इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड मैंने कहा था, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड मैंने कहा था. दैट मीन्स इट इज IUPAC
its IUPAC nomenclature is methanoic anhydride, but its common name is formic anhydride. Its common name is formic anhydride. यहाँ पे इथेनोइक एनहाइड्राइड, लेकिन इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम था वो एसिटिक एसिड है. हाँ, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड अगर इसका हम कॉमन नेम दे देंगे, हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू units of acetic acid, 2 units of acetic acid. For example, CH3 C double bond OH, जो यहाँ पे मैंने दिखाया, this is acetic acid, this is acetic acid. Acetic acid is the common name of ethanoic acid. That is why अगर हम इसका common name दे देंगे तो acetic anhydride. My dear students, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि anhydrides are the derivatives of carboxylic acids. जब carboxylic acids एक दूसरे के साथ 2 units of carboxylic acids are combined with each one another, there is the loss of water and there is a formation of an anhydride. Now उसका जनरल नेम जो anhydrides का होता है alkanoic anhydride. अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर फॉर एग्जांपल बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये दाईं तरफ बाईं तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो एक ही अल्केनोइक का नाम हमें लिखना होगा. यहाँ पे इथेनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ पे मिथेनोइक एनहाइड्राइड. अब आप लोगों को अब मैं दूसरे एग्जांपल दे दूंगा, इजीली समझ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और H. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से बेसिक टिप, दाईं तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कीजिए 1, लेकिन बाईं तरफ 1 and 2. दैट मीन्स यहाँ पे इथेनोइक, यहाँ पे मिथेनोइक, मतलब when ethanoic acid combines with methanoic acid, there is the formation of this very anhydride. सिंपल टर्म्स में एक कार्बन एटम, जब एक कार्बन एटम वाला एसिड होगा तो मिथेनोइक एसिड, जब 2 कार्बन एटम वाला एसिड होगा तो इथेनोइक एसिड. दैट मीन्स इसका नोमेनक्लेचर इथेनोइक. अब दोनों हमें लिखने हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट है, विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर. M से पहले आता है मिथेनोइक अब एनहाइड्राइड. अगर इसका कॉमन नेम एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक क्योंकि ये एसिटिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड था तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड. यहां पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑक्सीजन 1, 2 and 3, यहां पे 1 and 2. नाउ दिस विल बी 3 कार्बन एटम्स एसिड, 3 कार्बन एटम वाला एसिड प्रोपानोइक एसिड. दिस इज 2 कार्बन एटम वाला एसिड इथेनोइक एसिड. इथेनोइक, प्रोपानोइक, anhydride. This is the nomenclature of acid anhydrides. How we are in a position to give the IUPAC name to an acid anhydride. Simple terms में याद रख लीजिए कि acid anhydride का जो functional group होता है that is C double bond O C double bond O dash. मतलब ये सिंगल बॉन्ड यहां से भी कार्बन चेन होगी, यहां से भी कार्बन चेन होगी. हमें क्या करना है, हमें जो ऑक्सीजन एटम होगा उसकी दाईं तरफ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनने हैं, बाईं तरफ भी गिनने हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हाँ, ये चीज याद रखनी है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोथ साइड्स इक्वल होंगे तो एक ही का नाम लिखना होगा. एल्केनोइक एनहाइड्राइड तब सिर्फ एल्केनोइक एनहाइड्राइड. हाँ, अगर डिफरेंट होंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड. माय डियर स्टूडेंट, दैट इज टू मच इजी for acid anhydrides. Secondary suffix oic anhydride. 2-3 एग्जाम्पल्स हम वन लाइन नोटेशन में डिस्कस कर लेंगे. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा जो ये ऑक्सीजन एटम है इसकी दाईं तरफ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लीजिए, बाईं तरफ भी. यहाँ पे 1, 2, 3 and 4, यहाँ पे 1, 2,
3 and 4. That means number of carbon atoms same, number of carbon atoms same. अब एक ही अल्केनोइक हमें लिखना होगा. That is कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 ब्यूटानोइक. Now my dear students, यहां पे ध्यान दे दीजिए और एक एग्जांपल. अगर यहां पे कोई मिथाइल ग्रुप होगा, दैट मीन्स कोई सबस्टिट्यूएंट होगा, अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए. व्हाट आई एम सेइंग दैट आप लोगों को एक एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर किस तरह से देना है. ऑक्सीजन के दाईं तरफ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिन लेने हैं, बाईं तरफ भी गिन लेने हैं. यहाँ पे कितने हैं? 1 2 and 3. यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 and 4. दैट मीन्स यहाँ पे ब्यूटानोइक होगा, यहाँ पे प्रोपेनोइक होगा. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है? 2 पोजीशन पे. 2 मिथाइल ब्यूटानोइक, उसके बाद प्रोपानोइक, और उसके बाद एनहाइड्राइड. बहुत इजी है. ना माय डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहां पे मैंने ये एग्जांपल दे दी. दाईं तरफ भी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, बाईं तरफ भी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. मैंने कहा सिर्फ एक ही को लिखना है. फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा कोई सबस्टिट्यूएंट था Br. तब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? तब एक ही नहीं लिखना है, दोनों को लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, on both sides of the oxygen atom, in case of anhydrides the number of carbon atoms are equal, but along one side there is a substituent. At that very time you have to write down both of the alkanoic acids. That means हम क्या लिखेंगे? 1 2 and 3. 3 पोजीशन पे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो ब्यूटानोइक, उसके बाद ब्यूटानोइक, एनहाइड्राइड. याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इज टू मच इजी. यहां पे आप लोगों को शायद अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ गई कि इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन केस ऑफ एनहाइड्राइड्स आर इक्वल, at that very time you have to write down only one alkanoic, but if one of them contains a substituent, दोनों को मेंशन करना है. Now I will write down certain examples. आप लोग वो खुद कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा. बस इतना याद रखना है विद रेस्पेक्ट टू एनहाइड्राइड्स. हमें देखना है, हमें ये भी पहले अच्छी तरह से समझ लेना है कि why we are naming them alkanoic, because these are the derivatives of carboxylic acids. When 2 units of carboxylic acids are treated with one another, there is the loss of water and there is the formation of an anhydride. 2-4 एग्जाम्पल्स आप खुद ट्राई कीजिए. रिंग वाला अच्छी तरह से समझ लीजिए. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ये मैं यहाँ पे ही डिस्कस कर लूंगा. और एक एग्जाम्पल, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे
द एनहाइड्राइड विच कंटेन्स ए रिंग। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन एटम के दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी आप लोगों को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिन लेने हैं और उसी का एसिड लिखना है, 1 और 2। दाईं तरफ यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2। लेकिन इस साइक्लिक रिंग को एज यहाँ पे एज ए सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे एज ए सबस्टिट्यूएंट है। हालांकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है जो मैंने अभी कहा, लेकिन जो लेफ्ट साइड में कार्बन चेन है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2 बट इट कंटेन्स ए सबस्टिट्यूएंट। अब हम यहाँ पे अलग अलग नाम लिखना है, यहाँ पे 2 साइक्लो हेक्साइल, 2 साइक्लो हेक्साइल। उसके बाद कौन सा एसिड है ये, इथेनोइक, इथेनोइक। उसके बाद इथेनोइक और एनहाइड्राइड। बहुत सिंपल है, याद रख लीजिए व्हाट आई एम सेइंग। 2-3 चीजें याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू एनहाइड्राइड्स, बाकी ये खुद आप ट्राई कीजिए। विद रिस्पेक्ट टू एनहाइड्राइड्स, दैट anhydrides are the derivatives of carboxylic acids. These are derived from carboxylic acids. When 2 units of carboxylic acids are treated with each other and there is a loss of water, वहां पे एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है। एनहाइड्राइड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ओइक एनहाइड्राइड होता है। जनरल नेम जो एनहाइड्राइड्स का होता है दैट इज एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। हमें क्या करना है, हमें जो एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है, उसके दाईं तरफ भी उसके बाईं तरफ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिन लेने हैं और उसी का एसिड लिखना है। अगर 2 है तो इथेनोइक एसिड, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स राइट साइड में भी सेम लेफ्ट साइड में भी सेम तो एक ही को लिखना है। जिस तरह से मैंने 2-3 एग्जांपल्स में कहा, हाँ अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होंगे तो एक के पास सबस्टिट्यूएंट होगा तो अलग अलग लिखना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये नहीं होता, अगर यहाँ पे ये नहीं होता, मतलब ये साइक्लिक रिंग यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ CH3 होगा, तो हमें तब सिर्फ इतना लिखना था इथेनोइक, जो मैंने अभी एग्जांपल्स में पहले ही कहा एनहाइड्राइड, बस इतना लिखना है। इथेनोइक 1 एनहाइड्राइड लिख सकते हो आप, या इथेनोइक एनहाइड्राइड। बहुत सिंपल है, दैट इज ऑल अबाउट एसिड एनहाइड्राइड्स। नाउ साइनाइड्स। Now cyanides. My dear students, कल मैंने जो लेक्चर्स, इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मैंने कहा था आप लोगों से टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स में CN आ जाता है। वहां पे आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। साइनाइड्स, CN is the functional group for cyanides. The general formula for cyanides is RC triple bond N, while as this is the general formula। R आप लोगों को पता है कि denotes an alkyl group, C triple bond N, it is their functional group, it is their functional group, C triple bond N is their functional group। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स में मैंने आप लोगों को कहा था कि वहां पे अल्डेहाइड्स भी हैं, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हैं, एंड esters, acid chloride, acid halide is what we can say, and acid amides. So after that, there is cyanide is also a terminal functional group which contains carbon. That means जो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो स्पेशल रूल्स 2 थे वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे हम वो डिस्कस कर लेंगे। पहले हम सिंपल एग्जांपल जिस तरह से वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी कर लेंगे। मैंने कहा था, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि द जनरल फार्मूला फॉर साइनाइड्स इज RC triple bond N, while as C triple bond N is their secondary functional group, while as secondary suffix for cyanides is nitrile। याद रख लीजिए, the secondary suffix which we are using in case of cyanides, it is nitrile। For example, my dear students, it is HC triple bond N, HC triple bond N, that is how many carbon atoms are there, 1 meth ANE, methane। what is it is secondary suffix, it is nitrile। यहाँ पे E अब कैंसल नहीं हो जाएगा क्योंकि N है। मीथेन 1 नाइट्राइल आप लिख सकते हो या मीथेन नाइट्राइल लिख सकते हो ना। इस तरह से होगा, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 1 and 2।
इथेन, इथेन नाइट्राइल। बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने मेरे जो लेक्चर्स हैं आप लोगों ने वहां पे देख लिए होंगे तो आप लोगों को ये बहुत इजी हो गया। Now, my dear students, here we are discussing the nomenclature of cyanides. Cyanides के बारे में मैंने आप लोगों को कहा their secondary suffix is nitrile। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मैंने सिंपल दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाए आप लोगों को, और ये भी मैंने कहा आप लोगों को कि cyanides are the terminal functional groups containing carbon, terminal functional groups containing carbon। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे Br 1, 2 and 3, या इस तरह से 1, 2 and 3। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 3, लेकिन 2 पोजीशन पे 2 ब्रोमो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? प्रोप, An, E नाइट्राइल, 2 ब्रोमो प्रोपेन नाइट्राइल इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। और जो जनरल नेम होता है साइनाइड्स का, दैट इज एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। दीज आर द एल्काइल साइनाइड्स। फॉर एग्जांपल यहां पे एल्काइल, एल्काइल ग्रुप कौन सा है? यहां पे एक एल्काइल ग्रुप है, दैट इज CH3। इस तरह से होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। वहां पे CN को अलग लिखना है। कितने अल्काइल ग्रुप्स है? एक कौन सा है? दैट इज इट इज मिथाइल, मिथाइल साइनाइड। ये कॉमन नेम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरली याद रख लीजिए कि अल्काइल साइनाइड्स आर द कॉमन नेम, जनरल कॉमन नेम ऑफ साइनाइड्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज देयर सेकेंडरी सफिक्स और हाउ यू आर इन ए पोजीशन to give the IUPAC nomenclature to an organic compound containing the functional group C triple bond N, C triple bond N। बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला हम यहाँ पे देख लेंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। लेकिन 3 पोजीशन पे एक सबस्टिट्यूएंट है और 5 पोजीशन पे भी सबस्टिट्यूएंट है। कौन सा सबस्टिट्यूएंट हम पहले लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, दैट इज 3 ब्रोमो 5 क्लोरो। B comes before C in the alphabetical order. After that, hex, ANE, hexane, nitrile. But it is too much simple. It is too much simple. If you have to name an organic compound containing C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कोई साइक्लिक रिंग। नाउ यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 8 कार्बन एटम्स आर देयर, बट 4 पोजीशन पे भी सबस्टिट्यूएंट है और 5 पोजीशन पे भी सबस्टिट्यूएंट है। 4 पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, 5 पोजीशन पे मिथाइल। 4 साइक्लोप्रोपाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। कितने कार्बन एटम्स है? 8। ऑक्टेन नाइट्राइल, ऑक्टेन नाइट्राइल। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम स्पेशल रूल्स, बहुत इजी है। नाइट्राइल्स का नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। आप लोगों को इसका सेकेंडरी सफिक्स जो होता है दैट इज नाइट्राइल। बाकी जो रूल्स है वो सेम फॉलो होंगे जो अदर फंक्शनल ग्रुप्स थे, जो अंदर अदर फंक्शनल ग्रुप्स थे। जिस तरह से हमने रूल्स वहां पे फॉलो किए थे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप का लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, वही रूल्स यहाँ पे भी फॉलो होंगे। स्पेशल रूल्स, स्पेशल केस फर्स्ट। जिस तरह से इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स, जिसने मेरे यहाँ पे लेक्चर्स देखे होंगे, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन केस ऑफ एस्टर्स, इन केस ऑफ एसिड हैलाइड्स, इन केस ऑफ एसिड एमाइड्स, मैंने वहां पे स्पेशल रूल क्या डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से होगा, देख लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N, या इस तरह से होगा। ये एग्जांपल मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N।
और एक एग्जांपल सी 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 ट्रिपल बॉन्ड एन। आप लोगों को पता है कि कार्बन की वैलेंसी खुद आप देख लीजिए, कार्बन की यहाँ पे दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब है इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्योंकि दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। टू केसेस आर देयर। एक में जो साइनाइड ग्रुप है, जो नाइट्राइल है, वो डायरेक्टली रिंग को अटैच है, स्पेशल रूल स्पेशल केस फर्स्ट में। और एक में वो एक कार्बन एटम को अटैच है और दैट वेरी कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द रिंग। इसका मतलब है साइनाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है। स्पेशल केस में मैंने यही कहा है हर एक फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तब मैंने कहा था कि जो यूजुअल उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है वो यहाँ पे यूज हम नहीं करते हैं व्हेन द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज नॉट, that means it is directly attached to the ring at that very time। इसका जो usual secondary suffix है वो यूज नहीं होता है in case of cyanide, that is carbonitrile। हर एक का अपना अपना secondary suffix हम वहां पे यूज करते हैं when the terminal functional group containing carbon is directly attached to the ring, यहाँ पे carbonitrile। अब क्या लिखेंगे, that means ये cyanide group हम काउंट नहीं कर लेंगे नंबरिंग में, इसका यही मतलब है। यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अमूमन हम क्या करते हैं, जो साइनाइड ग्रुप का कार्बन है वो रिंग में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 एंड 3 हम ये रिंग में, मतलब हम काउंटिंग में ये इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे हम काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम एक सेकेंडरी सफिक्स, इसका अलग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसका नोमेनक्लेचर साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। देख लीजिए बेटा, आप लोगों को जिसने मेरे लेक्चर देखे होंगे इजीली अब समझ आ जाएगा। यहाँ पे साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन, बिकॉज 4 कार्बन एटम्स आर देयर, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी नंबरिंग करनी है और इस रिंग को एज सबस्टिट्यूएंट कंसिडर करना है। जो मैंने कहा था कि अगर एक रिंग के साथ साइड चेन होगी, साइड चेन में ही फंक्शनल ग्रुप है, तो तब क्या कीजिए, साइड चेन को एज पेरेंट चेन कंसिडर कीजिए और जो रिंग होगी उसको एज सबस्टिट्यूएंट। लेकिन जब ये डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, कौन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन होगा। यहां पे नाउ 2 साइक्लोहेक्सेन नहीं, हेक्साइल, बिकॉज इट इज ए सबस्टिट्यूएंट। नाउ कितने कार्बन एटम्स हैं, इथेन, एनी, बिकॉज कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, और नाइट्राइल। यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल यूज होगा, यहाँ पे नहीं होगा कार्बोनाइट्राइल। यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 एंड 3, क्योंकि साइनाइड ग्रुप रिंग को डायरेक्टली अटैच नहीं है। नाउ 3 साइक्लो ब्यूटाइल, बिकॉज 4 कार्बन एटम्स आर देयर, प्रोपेन नाइट्राइल will be its IUPAC nomenclature। इजीली समझ आप लोगों को आ जाएगा। अगर आप मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको आप लोग यहाँ पे देख लोगे तो you will be in a position to understand these very examples very easily। My dear students, और एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है रिंग को डायरेक्टली अटैच है। दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूजुअल जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा वो हम यूज नहीं कर लेंगे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। अगर मैंने इस कार्बन एटम को नंबर 1 दे दिया, क्यों, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। अब मैं नंबर 2 किसको दे दूंगा, याद रख लीजिए, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन एटम को आप लोगों ने नंबर 1 दे दिया तो दूसरे को 2 देना ही देना है। हाँ, आप यहां नहीं जा सकते हो 1 और 2, मतलब यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट है नहीं। आपने एक कार्बन एटम के डबल बॉन्ड के एक कार्बन एटम पे आपने नंबर 1 दे दिया, दूसरे को नंबर 2 देना है और यहां से नंबरिंग
स्टार्ट करनी है 1 4 3 4 5 and 6 that means its nomenclature will be 6 bromo 6 bromo now cyclo हेक्स किस पोजीशन पे इन है 1 इन कार्बोनाइट्राइल यहां पे नाइट्राइल नहीं लिखेंगे हम कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द नाइट्राइल हमें तब लिखना है जब ये डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं होगा दैट इज ऑल अबाउट स्पेशल केस नंबर फर्स्ट स्पेशल केस नंबर सेकंड आप अपनी कॉपी और पेन से अच्छी तरह से नोट कीजिए जो यहाँ पे मैं कह रहा हूं आप लोग नोट करते जाए आप लोगों को फ्यूचर के लेक्चर्स में बहुत जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तब हम ये नोमेनक्लेचर में आप लोगों को जब 11th क्लास के लिए अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स और फंक्शनल ग्रुप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तब आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा अगर आप लोगों ने ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लेक्चर्स आप लोगों ने वॉच किए होंगे स्पेशल केस नंबर सेकंड देख लीजिए बेटा मैंने कहा था हर एक एग्जांपल में सी यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड N होगा यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड N होगा यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड N होगा मैंने कहा था स्पेशल केस सेकंड में हर किसी जगह पे जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा और सिमेट्री होगी सिमेट्री का मतलब है एक एसाइक्लिक चेन होगी एसाइक्लिक चेन का मतलब है मतलब ओपन चेन होगी लेकिन जितने कार्बन आइटम्स होंगे उतने ही मतलब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन होंगे यहाँ पे 1 2 and 3 अब मैं डायरेक्टली कहूंगा किस तरह से हमें इसका सही नोमेनक्लेचर देना है दैट इज प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल यहां पे भी हमें नाइट्राइल नहीं लिखना है कार्बोनाइट्राइल लिखना है देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स मैंने इन ये 4-5 जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे जो दो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच वर कंटेनिंग कार्बन यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से वो डिस्कस किए थे कि मैंने आप लोगों को कहा था क्यों हम इसका मतलब 1 2 and 3 ये कहाँ पे ये यहाँ पे क्यों नहीं कंसिडर करते हैं कि ये मैंने वहां पे डिस्कस किया था क्या फॉर एग्जांपल आप लोग देख लोगे 1 2 3 4 and 5 ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है अब इस थर्ड वाले कार्बन जो मतलब नाइट्राइल ग्रुप है इसे हम सबस्टिट्यूएंट कंसिडर कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आईयूपीएससी ने ये नहीं माना है कि आप इसको सबस्टिट्यूएंट कंसिडर कीजिए आप तीनों को छोड़ दीजिए अगर सिमेट्री होगी रिंग में अगर चेन में सिमेट्री होगी तो तीनों को छोड़ना है लेकिन माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए अगर यहाँ पे इस तरह से होगा C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N या जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH अच्छी तरह से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे करना क्या है देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होगी क्योंकि 1 2 3 और 4 यहाँ पे कोई भी नहीं छूट रहा है मतलब 2 कार्बन एटम्स आर देयर 2 साइनाइड ग्रुप्स आर अटैच्ड टू देम बट हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 5 कार्बन एटम्स की है लेकिन एक छूट रहा है आईयूपीएससी ने ये नहीं माना अगर सिमेट्री रिंग में होगी और कोई आपसे छूट रहा है तो आप नाइट्राइल को नाइट्राइल मत लिख लीजिए कार्बोनाइट्राइल लिख लीजिए और सभी जितने भी कार्बन एटम्स हैं जिनके साथ मतलब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स विद कार्बन होंगे उनको छोड़ दीजिए और सिर्फ कार्बन एटम्स की आप नंबरिंग कीजिए यहाँ पे मैंने किया 1 2 and 3 कितने कार्बन एटम्स है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल यहाँ पे हमें 1 और 2 मतलब 1 2 इथेन 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल नहीं लिखेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास है दैट मीन्स वी विल राइट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स इट इज ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल इट इज इसका नोमेनक्लेचर होगा
ब्यूटेन डैश 1,4 ड्राई नाइट्राइल, क्योंकि ये रिंग में कंसिडर काउंट होता है, यहाँ पे ये काउंट नहीं होता है, यहाँ पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स काउंट नहीं होंगे। दैट मीन्स व्हेन दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग तब भी काउंट नहीं हुआ। हाँ, ये एज मतलब प्रीफिक्सेस वहां पे जब हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लेंगे तब ये एज प्रीफिक्स भी यूज होगा, एज सेकेंडरी प्रीफिक्स भी यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स, दोज कार्बन चेन्स व्हिच कंटेन ओनली द साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे भी दोनों काउंट हो जाएंगे, मतलब इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ये शायद एग्जांपल वहां पे हमने डिस्कस नहीं की थी। इथेन ई यहाँ पे अब कैंसिल नहीं हो जाएगा क्योंकि डी है यहाँ पे। हाँ, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्पेशल केस सेकंड भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि when there is the symmetry in the ring and it contains the terminal functional group with carbon। याद रख लीजिए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन, जो मैंने वहां पे एक टेबल दिया था आप लोग पिछले वाले क्लासेस में, साइनाइड इनमें से आता है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2 कार्बन एटम्स को 2 साइनाइड ग्रुप्स अटैच होंगे तो जो यूजुअल उसका सेकेंडरी सफिक्स होगा वो यूज हो जाएगा, लेकिन अगर 3 को अटैच होगा तो वहां पे हमारे पास एक डिफिकल्टी आ जाती है कि एक एज प्रीफिक्स यूज होता है, लेकिन IUPAC ने इसको नहीं माना है। फॉर एग्जांपल ये भी C, इसको भी CN अटैच होगा, इसको भी CN अटैच होगा, डायरेक्टली बुक्स में CN वो दिखाते हैं, एक्चुअली ये है C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे भी हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है, ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। नाउ दिस इज द स्पेशल केस सेकंड। हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स इसके बारे में यहाँ पे पिछले वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स थे यहाँ पे डिस्कस किए हैं इसके बारे में। दिस इज ऑल अबाउट साइनाइड। यहाँ पे मैं 2-4 एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पे दूंगा, आप वो खुद ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग कमेंट कीजिएगा। बस इतना याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल रूल, फर्स्ट अगर ये रिंग को डायरेक्टली अटैच होगा तो अपना यूजुअल जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो यूज नहीं होता है। हर एक टर्मिनल फंक्शन ग्रुप का अपना अपना सेकेंडरी सफिक्स होगा। और एक चीज, अगर चेन में सिमेट्री होगी तब भी अपना यूजुअल जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो यूज नहीं होता है। नाउ ये आप खुद ट्राई कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और ये खुद ट्राई कीजिए। दीज आर द एग्जांपल्स अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सायानाइड्स। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सायानाइड्स। स्पेशल रूल यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई होगा, इस यहाँ पे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोसायानाइड्स बहुत स्मॉल टॉपिक है। आइसोसायानाइड्स The general formula for isocyanides is RN, यहाँ पे एरो है C। This very arrow, याद रख लीजिए बेटा, arrow denotes as the coordinate bond. Coordinate bond is between nitrogen and carbon। For example, A और B के बीच में, A से एरो पॉइंट करता है B तक, मतलब B टू B, ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A पॉजिटिव B नेगेटिव। दैट मीन्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, RN पॉजिटिव
C नेगेटिव, इस तरह से भी लिख सकते हैं Rn पॉजिटिव C नेगेटिव, because there is a coordinate bond between N. The coordinate bond is pointing from N to C. This is the general formula for, my dear students, isocyanides. These are also known as isonitriles. These are also known as isonitriles. लेकिन एक चीज याद रख लीजिए my dear students, isonitriles or isocyanides are not generally considered as functional groups. These are considered as substituents. My dear students, these are not considered as functional groups. These are considered as substituents. इनका जो जनरल नेम है, पहले इनका जनरल नेम था आइसोसायानो एल्केन. अब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? कार्बाइल एमिनो एल्केन. अब क्या हम लिखते हैं? पहले क्या लिखते थे? आइसोसायानो एल्केन, IUPAC नोमेनक्लेचर. इनके साथ आइसोसायानो एल्केन या लिखेंगे या कार्बाइल एमिनो एल्केन. मतलब N ट्रिपल बॉन्ड C को आइसोसायानो कहते थे पहले. अब क्या कहते हैं? कार्बाइल एमिनो एल्केन. उसके बाद हम एल्केन चेन लिखते हैं. फॉर एग्जांपल देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे C N डबल बॉन्ड C, इस तरह से होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी इट्स नोमेनक्लेचर. नाउ कितने कार्बन एटम्स हैं यहां पे? पहले ये क्या है? ये कौन सा ग्रुप है? आइसोसायनाइड. अब अगर हमें उसका IUPAC नेम देना होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी नोमेनक्लेचर, जो पहले वाला था आइसोसायानो, पहले हम लिखेंगे आइसोसायानो 1 पोजीशन पे, या पहले लिखेंगे 1 आइसोसायानो. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? मीथेन. बहुत इजी है. और आज क्या लिखेंगे? इस N ट्रिपल बॉन्ड C को क्या कहते हैं? कार्बाइल एमिनो. 1 कार्बाइल एमिनो. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1, दैट इज मीथेन. बस बहुत इजी है. यहां पे C N, हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 and 2. 1 है. एल्केन पार्ट को हमें इसकी नंबरिंग करनी है. ये कौन सा ग्रुप है? या तो आइसोसायानो, कितने कार्बन एटम्स है? 2. इथेन, या तो 1 आइसोसायानो इथेन और कार्बाइल एमिनो इथेन. इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Br होगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है और N इस तरह से होगा. नाउ नंबरिंग 1, 2 and 3. माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए मैंने क्या कहा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Br होगा, यहाँ पे Br होगा. नाउ आप लोग नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर लोगे? यहां से 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. 2 ब्रोमो, 1 आइसोसायानो. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 3, दैट इज प्रोपेन. जनरल नोमेनक्लेचर आइसोसायानो एल्केन, जो आज हम लिखते हैं कार्बाइल एमिनो एल्केन. मतलब हमें R इसका 2 ब्रोमो, 1 कार्बाइल एमिनो प्रोपेन. Generally, my dear students, this very isocyanide is considered as a substituent. It is considered as a substituent, not as a functional group. देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा.
देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिंग के बीच में भी हो सकता है और रिंग के एंड में भी हो सकता है, बिकॉज इट इज ए सबस्टिट्यूएंट. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ए चेन. यहां से नंबरिंग हमें करनी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. नाउ ये भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन 2 पोजीशन पे कौन सा सबस्टिट्यूएंट है? ब्रोमो. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो. या अब हम इसका नाम कार्बाइल एमिनो ही लिखेंगे. 5 कार्बाइल एमिनो. अब एल्केन. अब एल्केन कितने कार्बन एटम्स हैं? ओक्टेन. या ये भी लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 5 आइसोसायनो ओक्टेन. 5 आइसोसायनो ओक्टेन. दिस इज द nomenclature all about nomenclature of isocyanide. याद रख लीजिए, it is considered as a substituent. और ये मैंने ये एरो दिखाया, देख लीजिए बेटा, यहां से नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? अगर हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 और 4 पोजीशन पे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे 4 पोजीशन पे हमारा सबस्टिट्यूएंट आता है 1 और 2. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2 पोजीशन पे. यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब जब हम नोमेनक्लेचर दे देंगे तो विद रेस्पेक्ट टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 आइसोसायनो लिख लीजिए या कार्बाइल एमिनो लिख लीजिए. आफ्टर दैट एल्केन पार्ट क्या है? नोनेन. नाउ यहां पे मैं एग्जांपल्स यहां पे कुछ लिखूंगा, आपको खुद ट्राई कीजिए विद रेस्पेक्ट टू आइसोसायनाइड्स. बहुत इजी है, बस जनरल नोमेनक्लेचर इसका नाम याद रख लीजिए, या तो आइसोसायनो एल्केन या कार्बाइल एमिनो एल्केन. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए रिंग, रिंग को जो फॉर एग्जांपल यहां पे भी नंबरिंग स्टार्ट करनी है. कहां से नंबरिंग कर लोगे? रिंग को 2 सबस्टिट्यूएंट्स अटैच है. अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे या यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये दोनों सबस्टिट्यूएंट्स है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है. यहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6. 1 ब्रोमो 3 कार्बाइल एमिनो cyclohexane, because it is a cyclic ring. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये खुद ट्राई कीजिए कि नंबरिंग हमें कहां से स्टार्ट करनी है. These are the examples which you will comment me in the comment section. I will be waiting for them, waiting for your response. That is all about the IUPAC nomenclature of acid anhydrides, cyanides and isocyanide. Cyanides के बारे में मैंने कहा कि स्पेशल केसेस 2 वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए, और विद रेस्पेक्ट जिस तरह से अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अदर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में स्पेशल केसेस 2 डिस्कस किए थे, इसी तरह से यहाँ पे भी. आप लोग ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स रखे हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिए
एनहाइड्राइड्स या साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स के बारे में आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।